Hello students, welcome once again. Sorry for the too much late actually for uploading beta oxidation cycle, that is on the basis of experiments done by German scientist George Knupp in 1994 explains that keeping in new the carbon group, that is bond COOH, the oxidation of fatty acid takes place at beta carbon atom. So here as we see कि जॉर्ज नूप जो जर्मन साइंटिस्ट थे 1994 में उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें कार्बन ग्रुप को सेंटर में रखते हुए उससे टच फर्स्ट कार्बन एटम दैट इज अल्फा और उसके जस्ट टेक्स्ट बिहाइंड दैट इज बीटा कार्बन एटम। वो बीटा कार्बन एटम पे ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड स्टार्ट हुआ तो उसे कहा गया बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड बिकॉज इट टेक्स प्लेस एट सेकेंड कार्बन एटम अटैच टू द कार्बोक्सिल ग्रुप. It mainly occurs in many tissues including liver, heart, adipose tissue and kidney. The beta oxidation of fatty acid involves three stages. पहला है activation of fatty acid in the cytosol, that is cytoplasm. Second is transport और second third जो stages है वो तुम्हारा पूरा mitochondrial मैट्रिक्स में हो रहा है क्योंकि साइटोसोल में जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो तुम्हारा वापस क्या होगा, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बाय स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. तो पहला है तुम्हारा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो थ्री स्टेजेस में इन्वॉल्व हो रहा है. पहला है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन द साइटोसोल, दैट इज साइटोप्लाज्म. सेकंड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड थर्ड इज बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. सो नाउ as you see that beta oxidation of fatty acids, beta oxidation of palmitic acid that contains 16 carbon atom in cytosol, we have as you see CH3 bond CH2 whole 12 bond CH2 bond CH2 bond COOH, that is palmitic acid containing 16 carbons, that is saturated fatty acid because it doesn't contain any double or triple bond, that is it is containing single bond, that is why it is saturated fatty acid. So it in the presence of acetyl coenzyme synthetase form fatty acid acetyl coenzyme, that is palmitoyl coenzyme, that is CH3 bond CH2 whole 12 bond CH2 bond CH2 bond CUS bond CUA, in which we see coenzyme SH reduced water in the presence of acetyl coenzyme synthetase enzyme, and here 2 ATP is consumed to form 2 ATP plus release of 2 inorganic phosphate. Now this palmitoyl coenzyme by a special transport mechanism enters into mitochondrial matrix where oxidation of fatty acid acetyl coenzyme, that is palmitoyl coenzyme, takes place, in which in the presence of acetyl coenzyme dehydrogenase, the enzyme acetyl coenzyme dehydrogenase, in the presence of acetyl coenzyme dehydrogenase, H2 molecule reduced or released, which is carried by which is carried by electron carrier protein, that is flavinadenine dioxide, and further it form its reduced form, that is flavinadenine, that is FADH2, which means जैसे हम एंजाइम देख रहे हैं एसिटिल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेस मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज H2 मॉलिक्यूल. तो CH3 बॉन्ड CH2 होल 12 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CUS डॉट CUA, दैट इज फैटी एसिड एसिटिल कोएंजाइम और पाल्मिटोल कोएंजाइम में से एक एक हाइड्रोजन अल्फा बीटा कार्बन के एक में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो H2, तो वो H2 जो निकला है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ जो फ्लेविनेडिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, दैट इज इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन विच टेक इलेक्ट्रॉन्स इन द विच फर्दर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. उसमें क्या हो जा रहा है, H2 जाके ऐड हो जा रहा है तो बन जा रहा है FADH2, दैट इज रिड्यूस फॉर्म ऑफ फ्लेविनेडिन डाइन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, क्या फॉर्म कर रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिल कोएंजाइम, दैट इज CH3 बॉन्ड CH2 होल 12 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CUS बॉन्ड CUA. ठीक है, फिर फर्दर हम देख रहे हैं हाइड्रेशन, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर. द एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिल कोएंजाइम हाइड्रेटेज, in which OH from H2O get attached to CH that attached to the beta carbon atom of beta hydroxyl acyl coenzyme, that is CH3 bond CH2 whole 12 bond CHOH bond CH2 bond COOH. जैसा होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिल कोएंजाइम में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिल कोएंजाइम हाइड्रेटेज के प्रेजेंस में वाटर ऐड होता है जो कि बीटा कार्बन एटम पे जिसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल के बीटा कार्बन एटम के जाकर अटैच हो जाता है तो बनता है क्या, बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम में.
दैट इज CH3 बॉन्ड CH2 होल 12 बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। फिर ये बीटा हाइड्रोक्सिल एसिल कोएंजाइम में बीटा हाइड्रोक्सिल एसिड कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेस मतलब अगेन रिमूवल ऑफ H2। तो इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, मैंने एरो में मार्क किया हुआ है बीटा हाइड्रोक्सिल एसिल कोएंजाइम में से कैसे HH निकल रहा है। तो दो H निकल रहा है यानी H2 मॉलिक्यूल निकल रहा है, दैट इज डिहाइड्रोजिनेस, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो it get attached to another electron carrier protein, that is nicotinamide adenine dinucleotide, which is in oxidized form, that is NAD+, that is nicotinamide adenine dinucleotide, which further get reduced to nicotinamide adenine dinucleotide in reduced form। ठीक है, ये हो गया। फिर हो गया CH3 बॉन्ड CH2 होल 12 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड COS बॉन्ड COA। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, CH3 बॉन्ड CH2 होल 12 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड COS बॉन्ड COA। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो दो H2 मॉलिक्यूल निकल जाने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, C डबल बॉन्ड हो यानी कीटो ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह कीटोनिक ग्रुप हो गया, बिकॉज C डबल बॉन्ड हो गया बीटा कार्बन पे। तो यहाँ पे हमको बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम में मिल गया, दैट इज CH3 बॉन्ड CH2 होल 12 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड COS बॉन्ड COA। ठीक है, तो हम देखें कि अभी तक क्या बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड में स्टार्टिंग में एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन द साइटोप्लाज्म, तो वहाँ से हमको फैटी एसिड एसिल कोएंजाइम में मिला। फिर फर्दर सीरीज ऑफ एंजाइम्स के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं लास्ट स्टेप है वो है थायोलिटिक क्लीवेज का। थायोलिटिक क्लीवेज मतलब रिमूवल ऑफ थायो ग्रुप, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ थायो ग्रुप। तो इट विल टेक इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज एंजाइम, तो एंजाइम का नाम थायोलेज रख दिया गया, बहुत ईजी है। जिस ग्रुप को जो क्लीवेज का नाम ब्रेकडाउन करा उसी आगे एस जोड़ दिया, थायोलेज हो गया। तो हम देख रहे हैं बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम में फर्दर बना रहा है तुम्हारा एसिल कोएंजाइम में, क्या बना रहा है तुम्हारा एसिल कोएंजाइम में। इसमें क्या हो रहा है, कोएंजाइम में सल्फर हाइड्रोल ग्रुप क्या कर रहा है, सल्फर हाइड्रोल कोएंजाइम में इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज एंजाइम फॉर्म एसिटिल कोएंजाइम में, दैट इज CH3 COS बॉन्ड COA, दैट इज एसिटिल कोएंजाइम में। ठीक है, और इससे क्या फिर बन रहा है, जो एसिटिल कोएंजाइम में जो फॉर्म हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है तुम्हारा नीचे तुम्हारा कोएंजाइम में ग्रुप हट जा रहा है, तो तुम्हारा बन जा रहा है CH3 बॉन्ड CH2 होल 12 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड SCOA, दैट इज एसिल कोएंजाइम है। ठीक है, और फिर हम जो देख रहे हैं ये जो थायोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो कोएंजाइम में सल्फर हाइड्रो ग्रुप है वो जो रिड्यूस फॉर्म ऑफ तुम्हारे एसिल कोएंजाइम में बन रहा है, ये एसिल कोएंजाइम फर्दर क्या कर रहा है, क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जा रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हर क्रेब्स साइकिल एक इंटरलिंक मेटाबॉलिज्म साइकिल है जो सारे मेटाबॉलिज्म को आपस में कनेक्ट करता है, क्योंकि सारे मेटाबॉलिज्म में से कहीं ना कहीं जो बाई प्रोडक्ट के तौर पे एसिटिल कोएंजाइम में निकलता है वही एसिटिल कोएंजाइम में एंजाइम प्रिकर्सर है जो कि तुम्हारा क्रेब्स साइकिल को जो कि क्रेब्स साइकिल को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं यहाँ देखें कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में लास्ट में जो थायोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में कोएंजाइम में सल्फर हाइड्रोल ग्रुप एसिटिल ग्रुप के साथ बाइंड करके एसिटिल कोएंजाइम में बनाया है, वही एसिटिल कोएंजाइम में फर्दर कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हमें एसिटिल कोएंजाइम में मिला बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड से, जो कि फर्दर इंटरकेस में करके क्रेब्स साइकिल में। सो हम कह सकते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो है उसका भी लिंक है किससे, क्रेब्स साइकिल से, बिकॉज इट आल्सो रिलीज अ बाई प्रोडक्ट एसिटिल कोएंजाइम में विच फर्दर एंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल। दैट्स ऑल। इसको आगे और इसके बारे में इसके एनर्जेटिक्स को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।